Good morning, Parag. Good morning, team. Parag, what time do we want to start? गुड मॉर्निंग एवरीवन। विकास जी, मुझे लगता है एक 5 मिनट और वेट करते हैं। Okay. विकास सर, स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट सेशन विक्रम ले रहा है, कैसा है? विक्रम सर स्टार्ट करेंगे।
Good morning, everyone. I'm Vikas Ved. I head the partner channel. Thank you so much for attending today this session on this Saturday. We are joined by our advisory head, Mr. Vikram Kasad, who will take you through our advisory products and market outlook. Post which we will have one more session on our AI product and Prabhudas Liladhar introduction. Over to you, Vikram. Hello, everyone. Just give me a second. I will just share the presentation and all. Good morning to one and all. Just give me a minute. Hi, can everyone see the screen, Vikas? Yes. Yes, it's visible. Okay. Hello. No. Hello, everyone. We'll quickly start with the session with the from the bird's view of the advisory desk, but we'll quickly cover what exactly PL Capital Prabhudas Liladhar is. And we are there from like 8 decade old. So this was our journey from 1944 till 2024. And we have a network strength of around 1,000 plus centers. We are there across 200 plus cities. And we have almost a team of 500 plus people over here. We have 1,60,000 plus clients. We have 250 plus leading corporates. And we have 100 plus foreign and domestic institutions. And we are managing roughly around 30,000 plus crore DPOM as of now. So we have recently changed our logo, and this is our new logo, PL Capital. And it was being done by Mr. Piyush Goyal himself. So you can see some of the glimpses of the event, which we recently did. These are some of the recognition which are driven for our clients. So the most recent was the Jamnalal Bajaj Prize for Fair Business Practices 2024. And there are many like business awards. The company is run by Ms. Amisha Vora, and she is a renowned figure. She often comes on the media also. So what we do exactly, so we have broking and distribution, institutional equities, investment banking, asset management, wealth management, and securities finance. So today, the more we will discuss about broking and distribution, and from my side as an advisory, and the rest, the team will convey to you what exactly we do in all the segments.
We have as an independent directors, which are industry stalwarts. One is there is Rajiv Dalal and Punita Kumar Sinha and Vimal Jain as an our independent directors. So what exactly our thought process is, the only one word, which is value, creating value, adding value, and adhering to our values at Prabhudas Liladhar. So we'll start with what exactly we do at advisory desk, wherein it can help you and your clients to know about markets, how to position in markets, how to drive, how to handle portfolios, and everything regarding to broking and distribution. एंड इसमें आपको मैं दोनों तरीके से बताना चाहता हूं कि किस तरह से क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से पोर्टफोलियोज को हैंडल करना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए। ये सारी चीजें आज अपन एक एडवाइजरी डेस्क से करेंगे। सो सबसे पहले जब दिन शुरुआत होता है, द अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज, अपन सबसे पहले चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या है। अपन चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे थे आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, आज एग्जैक्टली आपको क्या क्या देखना चाहिए। ये सारी चीजें एक सुबह उठने के बाद पहला जो थॉट आता है वो यही थॉट आता है कि हाउ द डे वुड बी एंड हाउ द वीक वुड बी, और इसको अपन कह सकते हैं कि कैसे अपन पोजीशन करें। तो फ्रॉम आर डेस्क सुबह 6:30 बजे से लेके 7 बजे के बीच में वी विल सेंड यू अ व्हाट्सएप, एन ईमेल, टेलीग्राम। एक छोटा सा नोट रहेगा, वो नोट पे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डे ग्लोबल मार्केट्स कैसे थे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए। जैसे आजकल जो इम्पोर्टेंट है वो है डॉलर इंडेक्स, यूएस ट्रेजरी यील्ड, क्रूड की दर है, एफआईएस का पोजीशन कैसा है, डीआईएस का पोजीशन कैसा है, ओपन इंटरेस्ट की दर है, पीसीआर की दर है। तो ये आपको इधर उधर जगल करने का जरूरत नहीं है। वी विल प्रोवाइड यू अ सिंपल एक 2 पैरा का नोट, जिसमें आपको समझाया भी जाएगा कि पीसीआर इधर है या ओपन इंटरेस्ट इधर है, ये एफआईएस कितना लॉन्ग शॉट है, तो वो लॉन्ग शॉट के हिसाब से दिन कैसा रहेगा, और वो दिन के हिसाब से यू कैन take the position. So this is the first thing which I would request everyone to have a look market viewpoint. उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है तो हमने हमारे कॉल्स को एक 3 कॉल्स में डिवाइड करके रखा है। वन वी से पीएल फोकस कॉल, वन वी से पीएल एमटीएफ कॉल, वन वी से पीएल निफ्टी अल्फा कॉल। ये हमने कॉल्स जो है ये किस तरह से हमने डिवाइड किया है वो मैं आपको क्विकली समझा देता हूं, सो दैट आपको एक्शन कैसे लेना है और कौन से पोर्टफोलियोज में लेना है वो हम आपको समझाएंगे। सो पीएल फोकस कॉल जो है वो एकदम मोमेंटम कॉल है, हमारा अल्फा कॉल जिसे कहते हैं, अल्फा फोकस कॉल। जैसे ही हमने कॉल दिया तो हार्डली उसके 1 हफ्ते के अंदर एक बड़ा एक्शन आ जाएगा। ये कॉल जो है आइदर कुछ मैनेजमेंट चेंज है, या वो सेक्टर में कुछ नया चीज हो रहा है, या किसी का बहुत बड़ा बल्क बाइंग हो रहा है, या कोई टर्न अराउंड चीज है जो वो सेक्टर और वो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऑफ कोर्स विथ टेक्निकल्स एंड वॉल्यूम बजर्स, ये सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए हमने एक फोकस कॉल निकाला है। हम कहते हैं कि आइडियली पोर्टफोलियो का 10% ऑफ द वेटेज आपने रखना चाहिए। स्टॉक हार्डली 2 से 3 महीने के लिए रहेगा, बट आउट परफॉर्मेंस एकदम शार्प रहेगा, वेरी शार्प। बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा और बहुत फास्ट उसको कैप्चर करना होगा। सेकंड, जैसा आपने देखा कि अभी एमटीएफ बुक के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं कि हमको एमटीएफ में कुछ लेना है, या एमटीएफ पे हमको माल खड़ा रखना है, या लेवरेज पे हमको माल खड़ा रखना है। सो फॉर दैट थिंग वी हैव स्टार्टेड एमटीएफ कॉल्स, जिसमें हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न आपको 20% मिलेगा ही मिलेगा ओवर जो भी कॉल लेंगे इनटू 2 to 6 months के पीरियड में। क्योंकि आप वो जो चीज लेने वाले हो वो आप लेवरेज पे लेने वाले हो, तो उसका रिटर्न हम एब्सोल्यूट
वो स्टॉक का रिटर्न 20% 2 से 6 महीने में आपको देने का पूरा कोशिश करेंगे, और इसमें हम स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हैं 10% का। थर्ड इज पीएल निफ्टी अल्फा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है यार निफ्टी चल गया, मेरा स्टॉक नहीं चला। जैसे आपने 4 साल में देखा होगा, डाबर का कुछ मोमेंट ही नहीं आया, बजाज फाइनेंस कोई मोमेंट ही नहीं है, एचडीएफसी लाइफ कोई मोमेंट ही नहीं है। ऐसे कई स्टॉक है जो मोमेंट ही नहीं दिए 4 साल में। तो फिर अभी कोई एक आधे पोर्टफोलियो में स्टॉक रह गया तो क्लाइंट एकदम से पूछता है कि व्हाट्स रॉन्ग। तो फॉर दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड दैट काइंड ऑफ सेट्स वी हैव क्रिएटेड पीएल निफ्टी अल्फा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम निफ्टी को बेयर मिनिमम 10% से आउट परफॉर्म करें, और इसका आइडियल पीरियड हमने रखा है 3 से 12 महीने, और आइडियल वेट रखा है हमने 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो। सो इस तरह से एडवाइजरी डेस्क से आपको ये 3 कॉल मिलेंगे, जिसका नाम है फोकस कॉल, एमटीएफ कॉल एंड निफ्टी अल्फा। सो ये दिस आर सम ऑफ द आइडियाज, दिस आर जस्ट द एग्जांपल्स कि कितना क्विक मोमेंट आता है। सो जैसे हमने सीडीएसएल दिया 1180 में, एंड विद इन 2-3 मंथ्स 1600 का भाव आ गया। सो दैट वाज द स्पीड ऑफ फोकस कॉल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एसबीआई जैसे हमने एक टाइम पे इनिशिएट किया था, तो 35% का रिटर्न, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देगा। और एमटीएफ आइडियाज जो हम 20% के ऊपर ही उसको अचीव करते हैं। अब ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि देर इज वन फोकस, देर इज वन एमटीएफ, देर इज वन निफ्टी अल्फा। हो सकता है कि आप अभी क्लाइंट्स लाने में जुड़े हो, या क्लाइंट्स कहीं बिजी है, या हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं रहा और कोई कॉल छूट गया, या कुछ एक्शन इधर उधर हो गया। सो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड पीएल फाल्कन करके जो पोर्टफोलियो है, वो हम ही मैनेज करेंगे। आपको सिर्फ क्लाइंट इंट्रोड्यूस करना है, और क्लाइंट इंट्रोड्यूस करके हमको देना है। इस पे कोई एयूएम चार्जेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रखा है कि एक डिसिप्लिन वे में पोर्टफोलियोज को देखा जाए। कई बार क्या होता है कि सपोज करके कोई स्टॉक हमें अच्छा लगा, जैसे कि हमने कहा कि सीडीएसएल हमको अच्छा लग रहा है, बट देखा जाए तो 1,60,000 अकाउंट है पीएल में। जब देखते हैं कि कितने लोगों ने लिया, तो वो समझ में आता है कि हाँ भाई कम लोगों ने लिया है। फिर देखते हैं कि एलोकेशन बराबर हुआ क्या, तो देखते हैं एलोकेशन बराबर नहीं हुआ है। फिर देखते हैं कि किसी ने कुछ ज्यादा एलोकेशन कर दिया, किसी ने कुछ कम एलोकेशन कर दिया। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो होता है, बेसिकली बाजार में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पोर्टफोलियो बराबर एलोकेटेड, बराबर सेक्टर पे, बराबर टाइम पे है या नहीं। अगर आप पीएसयूज लेके बैठे हैं लास्ट 6 महीने से, तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड ही करेगा। बट वही अगर पीएसयूज आपके पास 2 साल पहले होता और एलोकेशन ज्यादा होता, तो आपका रिटर्न सबसे ज्यादा होता। सो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को टाइमली कैसे चेंज करना, कैसे सेक्टर्स को चेंज करना, और कैसे स्टॉक्स में बैठना, वो सब चीजों के लिए डिसिप्लिनली स्टॉप लॉस कैसे लगाना, हमने एक पीएल फाल्कन करके पोर्टफोलियो बनाया है। वो पोर्टफोलियो आपको सिर्फ क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए है, सॉरी 5 लाख रुपीज है। इसमें एक्चुअली आप तो आज लिया और आपको सपोज कल रिडीम करना है, आप कर सकते हैं। बट हमारा ध्यान है कि मिनिमम 3 से 6 महीने के लिए ये स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। वेटेज इसमें 5 से 10% का है, जो हम सिंगल स्टॉक में लेते हैं। जस्ट सॉरी। सो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हम लेते हैं वो अराउंड 15 के आसपास लेते हैं ये पीएल फाल्कन में। सो इसी तरह से हम लोग ये पोर्टफोलियोज को हैंडल करते हैं। ये इसका डीलिंग, क्लाइंट कंफर्मेशन, क्लाइंट को प्री ट्रेड कंफर्मेशन, एवरीथिंग फ्री विल हैपन फ्रॉम द बॉम्बे डेस्क, अपना जो हेड ऑफिस डेस्क है वहां से। सो आपको सिर्फ क्लाइंट इंट्रोड्यूस करना है एंड नथिंग एल्स।
So this is now what exactly we do from our advisory services. सो आपको एक तो जैसे मैंने बता दिया कि एक हम सुबह सुबह आपको मार्केट व्यू पॉइंट पे कॉल देंगे कि क्या आउटलुक है, फिर किस तरह से हम कॉल्स देते हैं मार्केट में और कैसे ट्रेड कंफर्मेशंस वगैरह होगा, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा एडवाइजरी डेस्क आपको कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकता है वो एक एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्सेस। सो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट जो है वो 250 से प्लस कॉर्पोरेट एक्सेस का डायरेक्ट एक्सेस। आपका कोई भी बड़ा एचएनआई क्लाइंट है जिसको कोई कंपनी में कुछ समझना है या वो सेक्टर में कुछ समझना है या कंपनी में किसी से बात करना है, इट्स जैसे आज मैंने आपके साथ जूम कॉल पे आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरह से आपके किसी भी क्लाइंट को इमीडिएटली हम 250 प्लस कॉर्पोरेट से विद इन एन आवर, विद इन 2 आवर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ पीएल कैपिटल प्रभुदास लीलाधर, जहां पे हमारा कॉर्पोरेट एक्सेस टॉप कंपनीज में 250 है, प्लस इसके अलावा 750 कंपनीज में हमारा सॉफ्ट एक्सेस है, जिसका मतलब हम एक दिन के अंदर वो कंपनी में तुरंत बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हो रहा है, वो सारी चीजें जान सकते हैं। ये कॉर्पोरेट एक्सेस सिर्फ एक बात करने तक नहीं है। आपको अगर समझना है कि कौन सा बड़ा होल्डिंग किसने लिया है, टॉप 100 शेयर होल्डर लिस्ट क्या है, आपको समझना है कि सेक्टर कैसा उनका जा रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, हम वो सारी चीजें एक कॉल के ऊपर आपके एक एचएनआई के साथ उधर बात कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एट प्रभुदास लीलाधर। इसके अलावा आईपीओ रिसर्च एक डेस्क हमने चालू किया है। आपने देखा होगा कि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं बट सारे ब्रोकर उसको कवर नहीं कर सकते हैं। सो हमने क्या किया है कि मेन बोर्ड हो या एसएमई हो, जहां पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो हम उसका नोट तो खुद ही निकाल देते हैं। बट अगर आपको कोई सेक्टर समझना है या कोई एसएमई आईपीओ समझना है या मेन बोर्ड आईपीओ समझना है, आपको समय सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। विद इन 2-3 आवर्स हम आपको एक 1 पेजर, उसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है या बिल्कुल अवॉइड करना है, ये एक 1 पेजर पे आपको हम लोग समझा के दे देंगे। दैट डेस्क इज आईपीओ रिसर्च डेस्क। अनलिस्टेड शेयर्स विच इज गोइंग फिनोमिनल फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। को कोई भी अनलिस्टेड शेयर लेना है, आपको कोई भी अनलिस्टेड शेयर पे कुछ रिसर्च चाहिए, आपको कोई भी अनलिस्टेड शेयर बल्क में लेना है, वो सारी चीजें प्रभुदास लीलाधर आपको एक्सेस करवा के दे देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेबिनार ऑन डिमांड। अभी आपको अगर सपोज जितनी भी चीजें मैंने बोली, या आपको किसी क्लाइंट से कनेक्ट करना है या हमारे किसी प्रोडक्ट हेड से कनेक्ट करना है या आपको हमारे टीम में किसी से बात करना है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बात करना है या आपको सर्विसेज के लिए बात करना है या आपका कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो लाइक ऑपरेशंस रिलेटेड हो, रिस्क रिलेटेड हो, लीगल कॉम्प्लायंस रिलेटेड हो, हमारे जैसे एडवाइजरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, हम विद इन मिनट्स आपके साथ ऐसे जूम कॉल कर सकते हैं जाकि वो सॉल्यूशन इमीडिएट फास्ट हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड वेबिनार ऑन डिमांड। अभी जो आ रहा है पोर्टफोलियो एनालाइजर, ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है और ये आप सब लोगों ने करना ही चाहिए आपके सारे क्लाइंट्स का, और आपने भी ये प्रैक्टिस एक बना के रखा ना, सो इट विल हेल्प यू लॉन्गर प्लस टू गेट द एयूएम एज सुन एज पॉसिबल। अब ये चीज हमने क्या कर रखी है मैं आपको क्विकली समझाता हूं। आपने सपोज किसी क्लाइंट को मिलने गए और क्लाइंट को मिलने के बाद में बोला कि आपका पोर्टफोलियो मैं एनालाइज करके देता हूं। अभी क्लाइंट बोलेगा कि मेरा पोर्टफोलियो एक डीपी में नहीं है, 3-4 डीपी में है। ठीक है, आप उससे जहां जहां पे भी उसके डीपी में कहा, जहां जहां पे भी उसका स्टॉक है, आपका आप उसका सिर्फ आईएसआईएन नंबर और क्वांटिटी ये दो मुझे भेज दीजिए। मैं आपको एक 1 पेज पे उसका जो स्टॉक है उस पे पीएल का क्या व्यू है वो आपसे शेयर करूंगा, पीएल का क्या टारगेट है वो आपसे शेयर करूंगा, पीएल का उस पे बाय सेल होल्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको अपडेट करता रहूंगा। बट ये यहाँ चीज नहीं रुका, इसके अलावा हम कंसेसनेस वो स्टॉक के ऊपर, जैसे एक स्टॉक है रिलायंस, वो स्टॉक के ऊपर कितने लोग, जितने भी लोग ब्रोकिंग फर्म में हैं, चाहे वो इंडियन ब्रोकर हो या फॉरेन ब्रोकर हो, जितने भी एनालिस्ट उसको ट्रैक करते हैं,
वो एनालिस्ट का एक कंसेसनेस व्यू क्या है वो रिलायंस स्टॉक के ऊपर, वो भी हम वो पेज पे बता देंगे। जैसे अगर सपोज पीएल का रिलायंस पे व्यू है 1500 का टारगेट है और कंसेसनेस का टारगेट 1700 है, तो आपको वो स्टॉक होल्ड करना ही करना है। और आपको एलोकेशन कम है तो एलोकेशन बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आपको एक वन पेज पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, पोर्टफोलियो एनालाइजर। इसका सबसे बड़ा अच्छा टूल क्या है, आपको वो पोर्टफोलियो एनालाइजर पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका कंसोलिडेटेड होल्डिंग कैसा है, आपका सेक्टर वाइज होल्डिंग कैसा है, आपका मार्केट कैप वाइज होल्डिंग कैसा है, आपका वेटेज कैसा है, और आपका सेक्टर वाइज होल्डिंग में भी किधर टॉप और किधर बॉटम होल्डिंग है। सो जैसे आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक कोई 10% से ऊपर है, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्योंकि आपका मेजर एलोकेशन वो स्टॉक के ऊपर हो गया। बट उल्टा, अगर आपका कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 2% से नीचे है, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि ये 2% के नीचे वाले स्टॉक का कोई फायदा नहीं है पोर्टफोलियो में रख के, उसको आपको रिडीम करना है, और या तो उसको रिडीम प्रॉपर एलोकेशन में करना है। बिकॉज 2% के नीचे वाले जो स्टॉक्स है उसका कोई बेनिफिट नहीं, वो डबल भी हो गया तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई काम नहीं आएगा। सो ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, ये आपको हम वन पेज पे बता देंगे। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप हो जाएगा, और पोर्टफोलियो अलाइन हो जाएगा विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट एंड विद द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो एनालाइजर एक डिसिप्लिनली हर क्वार्टर रिजल्ट होने के बाद एक बार रन करना चाहिए, क्लाइंट के साथ बैठना चाहिए। कोई भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो या कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, उसके पास वो पोर्टफोलियो लेके जाएंगे, जिस तरह से फॉर्मेट में लेके जाएंगे वो भी समझेगा, समझ में आएगा कि यू केयर फॉर दैट पोर्टफोलियो। और ये एक बहुत टूल हेल्पफुल रहेगा टू गेट द क्लाइंट्स, टू गेट द बिजनेस ऑल्सो, एंड टू शो द पोटेंशियल कि हम किस तरह से वेल्थ जर्नी में आपका साथ दे रहे हैं। द लास्ट पार्ट इज इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। हमारे पास 35 एनालिस्ट का टीम है, जो सारे सीए एमबीएस है। इट इज हेडेड बाय मिस्टर अमनीश अग्रवाल। जितने भी डीआईएस एफआईएस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे साथ जो कनेक्टेड है, वो सारा रिसर्च डेस्क इधर से ही जाता है उनको। एंड जैसे दूसरे दूसरे ब्रोकिंग हाउसेस में अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग रिसर्च बास्केट्स है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। The same research which is given to the FIs, DIs, it's been given to the retail, HNI, ultra HNI, PCG, wealth, सबके लिए। हम लोग इसमें 160 से 170 स्टॉक्स कवर करते हैं। उसमें से कुछ हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है जो हम लोग हर क्वार्टरली उसको निकालते हैं। एक हमारा द बीट करके न्यूज़लेटर है जो एडवाइजरी डेस्क से आता है, जिसमें हम जो नए स्टॉक आइडियाज या नए थीमेटिक आइडियाज इस पे बहुत फोकस करते हैं। सो वन ऑफ सच आइडिया इज डीसीएक्स सिस्टम, जो हमने रिसेंटली निकाला है। और जो हमने एक लास्ट में, जैसे डीसीएक्स एक ये सिंगल स्टॉक के ऊपर आएगा, तो आप ये द बीट को ध्यान रखिए। जब भी द बीट से कुछ आया तो आपको उसके ऊपर तुरंत फोकस करना है, तुरंत उस पर एक्शन लेना है। और उसी तरह से हम सेक्टर पे भी ध्यान देते हैं। जैसे लास्ट जो सेक्टर ओरिएंटेड रिसर्च आइडिया था, वो था वन ऑफ द लास्ट मीन्स, मतलब इसमें तो वो था वाटर थीम के ऊपर। तो हमने पूरा डिटेल में आपको, जैसे देखिए 4 पेज का नोट है, और 4 पेज में भी थोड़ा सा आप देखोगे तो मोर और लेस उसमें थोड़ा बताया गया है इन इजी वे कि क्यों हमने ये सेक्टर को चुना था। अचानक से गवर्नमेंट एकदम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बात करना चालू कर दिया था मई 2024 में। तो हमने नोटिस किया कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल रही है, नमामि गंगे बोलो, जल शक्ति अभियान बोलो, स्वच्छ भारत बोलो, सो अमृत बोलो, हर घर जल बोलो। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है सेक्टर में, और क्विकली उसको आइडेंटिफाई किया, और एक 3 पेजर का नोट बना के हमने बताया कि हाँ, वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत सही जगह पे है। कौन कौन से ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, पाइप वाटर, वाटर ईपीसी, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां ध्यान देना चाहिए, क्या वैल्यूएशन है। एंड यू वोंट बिलीव, जब ऐसे थीमेटिक्स और ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्ट और सारे एंगल एक साथ जुड़ जाते हैं, तो हमने दिया था 10th मई को ये रिपोर्ट निकाल के, और जो स्टॉक्स हमने दिया था, विद इन 3 मंथ्स कुछ स्टॉक 100%, 79%, 50% तक के चले गए थे।
सो दिस इज द वे, दिस द बीट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट है जो हर ब्रोकर के यहाँ पे नहीं है, विद ओनली एट प्रभुदास लीलाधर, which focuses on thematic baskets, which focuses on the some of the direct company calls, जहां पे आप एक अच्छा डिसेंट एलोकेशन लेके आप इसको राइड कर सकते हैं. So this is about the beat. These are some of the high conviction stocks which are there from our institution desk. And I guess Alpha Insights, there will be a call right now in some time. So this is it from the advisory desk. Any questions and answers, I am ready. If you can just drop a questions regarding कोई stock के बारे में जानना है या कोई चीजों के बारे में जानना है. जैसे क्वेश्चन आया, इज अनलिस्टेड शेयर्स रिसर्च चार्जेबल? ये बिल्कुल चार्जेबल नहीं है. और मैंने अभी तक के जो भी चीज आपको बताया है, ये कहीं पे भी कुछ भी चार्जेबल नहीं है. आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए एंड वी वुड लव टू सेंड यू द डिटेल्स राइट अवे. विकास, इफ अल्फा इनसाइट्स का सेशन हो रहा है अलग से? यस, तेरे सेशन के बाद में आई विल टेक इट अप. Okay. So let's focus on that. This is all from the advisory desk, which I discussed till now. I think there Thank are you. some questions. Yeah. You have answered this question. What is the difference between algo and AI? Unlisted research chargeable. Yeah. I've the second is What is what your we call call on BEL? BEL. We are very much bullish on BEL. और हमारे एक वो high conviction में भी है. So BEL we are very much focused of. I hope this is AB Capital which you are talking about, A Capital. AB Capital पे व्यू तेजी का है, बट द मोमेंटम उसमें इतना फास्ट नहीं रहेगा, तो एक 2 से 3 क्वार्टर आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा. Will you Okay, send Parag, text? the main Yeah. audience is of what type? मतलब they are prospects, Oh, brokers or clients? No. Prospects are brokers. Okay. So, Vikram, thank you उसमें so much for एम्पेलमेंट the session. एम्पेलमेंट होने के question बाद है. ही हम उसमें आपको भेज पाएंगे, क्योंकि ये जितना भी चीजें हैं वो क्लोज पीएल के पार्टनर्स के लिए है. सो जितना भी इनसाइट्स, ये तो जो इनसाइट्स मैंने अभी तक के आपको जो बोला है, जितना भी बात किया है, इससे बहुत ज्यादा इनसाइट्स हमारा एक एडवाइजरी डेस्क ग्रुप है, जिसमें मैं लाइव मार्केट फीड्स, लाइव मार्केट कॉल्स, जैसे कोई रिजल्ट आया तो कैसे एक्शन लेना है, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स. सो आपको एम्पेलमेंट करना होगा, देन ही यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पीएल एडवाइजरी ग्रुप. सो पीएल प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हो, जो मैनेज करते हैं, उसका नाम है पीएल फाल्कन, एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5 लाख रुपीज. Okay, Vikas, sorry to. Okay. Thank you so much, Vikram, for your views. And if you want to quickly talk about what is your view in the markets, Abhi, with the markets falling one So yeah, side. yeah. So I have to discuss this thing at the start only, but really sorry. So I will just take 2-3 minutes, 5 minutes for that. So basically क्या हो रहा है कि if you notice, मैं पहले कल से स्टार्ट करता हूँ कि कल क्या हुआ. So कल आपने नोटिस किया हो तो क्रूड वॉज डाउन, डॉलर इंडेक्स वॉज डाउन, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स वर डाउन, एंड स्टिल अपना मार्केट एक करेक्ट होता गया. सो आई वेटेड फॉर द द डेटा इन द इवनिंग. एग्जैक्टली हुआ क्या है कि कल अचानक से ऐसा सेलिंग कैसे आ गया. सो कल पहली बार इतने टाइम बाद रिटेल का सेलिंग आया है, विच वॉज नॉट देयर इन द मार्केट फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो आई केल रिटेल क्लाइंट्स थोड़ा कल शॉक हो गए और थोड़ा घबरा गए हैं और उन्होंने बेचा है. सो कमिंग ऑन द पॉइंट कि बाजार में एक्चुअली ये इतना सेलिंग हो क्यों रहा है, तो मैं आपको एक क्विकली समझाना चाहता हूँ कि पहले तो 2024 एक इलेक्शन ईयर था और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ना के बराबर था. गवर्नमेंट ने कोई स्पेंड किया ही नहीं है फ्रॉम जून टिल दिसंबर, दिसंबर 15 तक के. गवर्नमेंट के तरफ से स्पेंडिंग एकदम से बंद हो चुका था, क्योंकि पूरा फोकस इलेक्शंस पे था. सेकंड, आपने अगर नोटिस किया होगा तो महाराष्ट्र में एक लाड़की बहन करके एक पॉलिसी निकाला और सब लोगों को फ्रीबीज इतना बांट दिया जो हिसाब के बाहर है.
जो फ्रीबीज बांट दिया। तो अभी जो गोरे लोग हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्या सोचते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए इतना फ्रीबीज बांटा है, तो ये तो सारे स्टेट्स इस तरह से अपना पॉलिसी ले सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो वरीनेस हो गया मार्केट के ऊपर, कि क्या ये सारे स्टेट इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और इसी तरह फ्रीबीज बांटते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा आगे, हाउ विल दे रन द शो। ये एक सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि आपने नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बोला गया रेनफॉल इज नॉट गुड, बारिश बराबर नहीं है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। बट बाद में अभी जब नोटिस किया कि जब पूरा सीजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो नहीं भाई, सब बराबर ही था। तो उसका जो फ्रूट है वो इस क्वार्टर में धीरे धीरे आएगा। इस क्वार्टर में मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जब क्रॉप बाहर आएगा तो वो पैसा बाहर निकलेगा। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा थोड़ा अभी विजिबल है। अभी विजिबिलिटी आ रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट डिफेंस के लिए कुछ निकाल रहा है, कुछ इधर निकाल रहा है। और अपने सर के ऊपर दो बड़े इवेंट है, एक है बजट, दूसरा है आपका आरबीआई का इवेंट। इसमें थर्ड फैक्टर और एक इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि ट्रम्प आ गया। अभी ट्रम्प आने से इंडिया को कितना फर्क होता है वो कुछ सेक्टर्स के ऊपर होता है, जैसे फार्मा, आईटी, इन सब पे होता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब ट्रम्प इलेक्शन के लिए लड़ रहा था, जब उसका चालू था प्रचार, तो वो प्रचार में क्या बोलता था कि चाइना पे मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही वो ऐसा बात करता था कि मैं चाइना पे ये कर दूंगा, मैं चाइना पे वो कर दूंगा, तो चाइना उधर क्या सोचता है कि मैं मेरा ही करेंसी डिवैल्यू कर दूंगा। तो पैसा क्या होता था कि पैसा इंडिया से निकल के तुरंत चाइना चला जाता। तो आपने जो सितंबर अक्टूबर वाला पीरियड देखा होगा कि पैसा चाइना चला गया। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब वो सीट पे आके बैठा तो उसने पहले दिन तो चाइना के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। जब दूसरे दिन बात किया तो बोला मैं सिर्फ 10% टैरिफ लगाऊंगा, जो पहले 60% लगाने का बात करता था। तो अपने जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, जो हाई स्केपर स्टॉक्स बोलते हैं, जैसे ट्रेंट हो गया, डिक्सन हो गया, पेटीएम हो गया, जो वो वाले हाई स्केपर स्टॉक्स है, जिसमें जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो सेम पीयर कंपनीज जो चाइना में है, वो 1/10 वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इंडिया में वो महंगा मिल रहा है। तो क्या हो गया कि ये सब में एक बड़ा सेलिंग जोर में आ गया। अभी जो एक अपन इंडिया का सोचते हैं, बट एक जो बाहर का गोरा है वो तो पूरा वर्ल्ड देख के सोचता है कि मेरे को किधर किधर एलोकेट करना है। तो उसने जैसे ही देखा कि बॉस इधर वैल्यूएशन ज्यादा सस्ता है, तो इधर जोर में सेलिंग आ गया। नेवरदलेस अभी मार्केट इतना ओवरसोल्ड जोन में है कि यहां से डाउनसाइड हार्डली 2-3% रहेगा, बट अपसाइड जगह बहुत बड़ा है। हमारा जो बेस कैलकुलेशन है वो 25,000 है 12 से 15 महीने में। और थोड़ा एक बुल के सिनेरियो तक के चला जाए हम, तो वो 27,000 के ऊपर चला जाता है, 27,300 के आसपास चला जाता है। सो नीचे में ध्यान 22,500 मैक्स टू मैक्स, और ऊपर ध्यान बहुत लंबा है। तो ये टाइम एग्जैक्टली वो टाइम है जब आप सब लोगों को वो पोर्टफोलियो एनालाइजर और पोर्टफोलियो की चीजों के ऊपर बात करना चाहिए। वो पोर्टफोलियो जो टूल है हमारा एनालाइजर, यूएस टूल, हमारा जो यूएसपी टूल है, वो आप सभी क्लाइंट्स के पास ले जाओ और राइट टाइम पे अभी उसको ठीक तरह से एलोकेशन कर देंगे, तो एक वेल जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा, काम करने का स्पीड भी बहुत स्मूथ हो जाएगा। एंड कमिंग आउट नाउ कि कौन कौन से स्टॉक्स जहां पे रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल है, आप आराम से लेके बैठ सकते हैं। देर आर सम स्टॉक्स जिसे मैं आपको पहले पीएसयूज में बास्केट में बता दूंगा, आप शांति से कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईओसी, ये अभी बिंदास लेके बैठ सकते हैं। अभी कोल इंडिया 6 के पी पे मिल रहा है, 6.25 का डिविडेंड यील्ड है। यू कैनॉट गो रॉन्ग इन दिस। ऊपर से उधर ट्रम्प सोलार के अगेंस्ट में है, तो वापस दिस एनर्जी, ये कोल वाला थिंग वापस से आ जाएगा, पावर वापस से थर्मल पे चलना चालू हो जाएगा। तो ये कोल इंडिया का एक ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसमें डाउनसाइड मुझे दिखता ही नहीं है ज्यादा, एक 20-30 रुपए का डाउनसाइड रहेगा, बट अपसाइड 500 के ऊपर आराम से जा सकता है ये स्टॉक। तो ये पोर्टफोलियो में कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, इस तरह के स्टॉक्स तो रहना ही चाहिए। दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ डिफेंस एंड मेटल्स। मैं डिफेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप आने के बाद अभी हर एक देश अपना डिफेंस को एकदम स्ट्रॉन्ग करने का पूरा कोशिश करेगा। डिफेंस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट एचएएल ले लो
या डायरेक्ट आप बीएल ले लो। ऑफ कोर्स बीएल पे ध्यान बहुत तेजी का है, बट उसके साथ में आप ऐसे स्टॉक्स भी देखिए जो एचएल और बीएल को बना के देते हैं। सी एचएल और बीएल एक जाइंट हो चुके हैं, बड़ा पैसा किधर बनेगा, जो इन दोनों को बना के देते हैं। तो उस तरह के स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए। एंड द लास्ट, मेटल्स। मेटल्स में एक बहुत बड़ा तेजी आने का यहाँ पे चांसेस है। वो चांसेस इसलिए है कि कभी ना कभी जैसे ही ट्रम्प उधर आपका टैरिफ लगाता जाएगा, इधर चाइना भी अपना कुछ ना कुछ एक्शन लेगा और वो फुल स्पीड में मेटल्स के ऊपर ध्यान चला जाएगा। मेटल्स में एकदम थॉट प्रोसेस सिंपल है, 4 स्टॉक पे फोकस कीजिए। सबसे पहले हिंडाल्को, वेदांता, हिंद कॉपर और टाटा स्टील। या तो ये चारों का बास्केट बना लीजिए, या क्लाइंट को जिस तरह से, किसी को एल्यूमिनियम समझता है तो हिंडाल्को, किसी को सारा सब कुछ चाहिए तो वेदांता, जिसमें अभी डीमर्जर का भी बहुत बड़ा ऑप्शन है, एक डीमर्जर का भी बहुत बड़ा प्ले आएगा उसके अंदर। किसी को प्ले करना है तो कॉपर में हिंद कॉपर, या तो स्टील में टाटा स्टील। तो इस तरह से आप ये साल को थोड़ा हाइयर एलोकेशन डिफेंस और थोड़ा हाइयर एलोकेशन मेटल्स को देके पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उस तरह से राइड कर सकते हैं। डिफेंस में एक हमारा डीसीएक्स भी हमने कॉल निकाला है, जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को द बीट नोट पढ़िए। तो आपको एक बीट नोट पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल 10-20% का नहीं, पोटेंशियल एक डबल ट्रिपल होने का एक स्टॉक हम आपके सामने लेके आए हैं। सो दिस इज द वे we run the portfolios, and this is the way we run the advisory. So thank you so much. Thank you, Vikas and Parag and Rohit. And we can go ahead with the other panelists now. Okay, thank you, Vikram, for that insight. I think one stock which everybody should remember from PL side is Coal India, what Vikram said, and DCX India's note. Thank you, Vikram. So, if you're okay, will you send insights with or without empanelment with you? Obviously, sir, we want you to empanel with us. You can get a lot more than insights, as you have seen. Quickly, just want to know, Parag, that we are somewhere around 30 attendees. Largely all are partners, or they are clients? No, they are partners only. Okay. So friends, I would like to show you one screen. This is a very interesting screen, which one very interesting data I've just made yesterday. Just 1 second, just let me put it up. Before I go into my AI product, 1 second. Can you see my screen? Can you see my Excel chart, Excel screen? Yes, sir. Okay. So if you join Prabhudas Liladhar as a progress partner, you can see we have put down 10 product names over here. These products, some of them you might be aware, but most of the products, almost 100% of the products, are only available with Prabhudas Liladhar. They are not available with anybody else. And I have put up how much potential, how much brokerage income you can make if you bring X number of clients with X amount of AUM. So just to give you an overview, we are the first broker in the market who have developed a quant-based PMS. And that quant-based PMS is known as Aqua. It has delivered 1 year return, it has delivered 78%. And in the market, it has beaten all flexi-cap mutual funds and all flexi-cap PMSs. Since it's a PMS, we are charging 2.5% and we are passing back 50% to you. So roughly, you make 60,000 rupees a year as commission for one PMS of 50 lakhs. Assuming you bring 10 clients, you get an AUM of 5 crore, you get a yearly income of 6 lakhs and a monthly payout of 50,000, quarterly payout of 1,56,000. This PMS, like I said, is very different. It is totally quant based, which is not available with any other broker. Suppose you don't have 50 lakh client,
then you can do the same product in a product called as SEP, where we take 10 lakh rupees instead of 50 lakhs. Again, the returns are very, 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 very good. You can expect close to 30 to 35% return CAGR compared to Nifty 500, which gives you around 15%. I will talk about this AI product, BridgeWeave, where we have tied up with the SEBI advisor, BridgeWeave, and they have got multiple products. So I will again come back to this sheet, but in case you all want to know that how you all can create a monthly income of close to 1.5 lakh rupees per month with no infrastructure cost at your end, only pushing some special products available with Prabhudas, we can discuss this sheet in greater detail. As of now, I will jump to my presentation of Alpha Insight. Just 1 second. Is my presentation visible? Yes, yes. Okay, so Prabhudas Liladhar has tied up with a company called as BridgeWeave. This company is a UK-based company. They are into AI, artificial intelligence from last 20 years. They have a very, very popular product called as Equity Rocket, which is very popular in Europe and London, UK markets. They are founded by these three gentlemen, Bruce, Akshay Bhargava, and Sarthak Behra. They came to India in around 2018, and they have a very, very large data center in Hyderabad. They have developed AI-based algorithms which identify patterns after crunching millions of calculations every day. So what we have done is, with this company, we have created an exclusive product which is only available at Prabhudas Liladhar. This product's name is called as Alpha Insight. And just to tell you how the stocks are coming to you, it is not just random, but it is after a detailed scientific process. The data is fetched from Bloomberg, and then a lot of scanners, filters, close to 3,600 features, or you can say filters, are applied, and then a matrix is prepared. This is the best case scenario in terms of the market. Finally, they identify stocks which are with high confidence. They also take into account corporate actions and events which are coming, and then the stocks are published as a final recommendation, which is the best stock for you to invest at that particular time when you are subscribing to this product. The benefit of such investing is, the best part is that there is no bias. You just heard Vikram. He spoke about Coal India. He spoke about DCX. You cannot take out human bias from any kind of study. Yes, study would be great. You would study fundamentals. You would study a lot of things. But ultimately, you would have your own bias. आपके मन में जो चलता है कि ये अच्छा है, आपके हिसाब से वो आ ही जाता है. तो बायस, डेटा में कोई बायस नहीं है, और कंटिन्यूस रियल टाइम डेटा को लेके कंटिन्यूस उसको कैलकुलेट करना और कंटिन्यूसली उसको प्रोसेस करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है. तो ये सारे बेनिफिट्स एआई देता है. अब आप देख सकते हैं कि ये एआई जो है, ये हमने अल्फा इनसाइट का नाम दिया है, और इसके अंदर 16 स्टॉक्स आते हैं. ये 16 स्टॉक्स जो होते हैं उसमें से 50% स्टॉक्स मोमेंटम वाले होते हैं, मतलब जो अगले 15 दिन में 4 से 5% जल्दी से बढ़ जाए वैसे स्टॉक्स. और 4 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी सेक्टर में भयंकर तेजी होती है, और 4 स्टॉक ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यूएशन
उनके भाव के हिसाब से काफी कम है। जैसे मार्केट का फंडामेंटल भाव उसका 200 होना चाहिए, बट मार्केट में उसका रेट 150 चल रहा है, तो इसको हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं। क्योंकि ये 3 प्रकार के स्टॉक्स आपके एक सिंगल पोर्टफोलियो में रिकमेंडेड है, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, और इसको एवरी 15 डेज चर्न किया जाता है बाय द सिस्टम। आप देख सकते हैं एज ऑन 31 अक्टूबर 76% का रिटर्न अल्फा इंसाइट ने क्रिएट किया एज अगेंस्ट द बेंचमार्क ऑफ 36%। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी की महीने में मैं अक्टूबर का क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको जनवरी का भी रिटर्न 1 सेकंड में दिखाता हूं। क्या हुआ था कि जनवरी के बाद में अक्टूबर के बाद में मार्केट्स had a huge correction, and it is very important for us to tell you that how the product performed when the markets were rising and how the product is performing when the markets are falling. Can you see my screen here this time? Can you see my screen? Parag, is it visible? Yes, it's visible. So these returns are as on 3rd January, 3rd to 10 जनवरी, ये 10 जनवरी तक का ये रिटर्न है। तो यू कैन सी द 76% रिटर्न in last 12 months came down to 40.8%, and the market which had given 30%, 36% return came down to 11.8%. I have also added multi-cap mutual fund for your reference. The mutual fund gave a return of close to 22%, but you can clearly see that from the market, the alpha insight, if it is invested for a period of minimum 1 to 3 years, you will always be able to get a higher alpha. The reason is very simple. The stocks are picked by artificial intelligence, and there is a 15-day cycle churning, which keeps you latest portfolio, which is the best stock, whether it is momentum, whether it is value, or whether it is sector. I hope you have understood the product mix and the return. The execution is even more simpler. You have to open a Prabhudas Liladhar account with us. The customer has to keep minimum 10 lakh rupees in the account. You can even keep 5 lakh rupees. You have to pay Bridgeview advisory fees of 25,000 rupees plus GST per year. From that 25,000 rupees, Prabhudas Liladhar will pass back 25%. That means you will get 6,250 rupees per account as a sub-broker and brokerage sharing in your sharing ratio. But the execution is done by our head office dealer by calling the client and taking the trade confirmation from the part of compliance point of view. Sorry. Since the portfolio is churned once in 15 days, your client will receive call with us only 2 times in a month. If the client is busy, he can reply to us on email also, as he will get WhatsApp and email notifications as well. इससे अच्छा, इससे बेटर एक पोर्टफोलियो को मैनेज करना और एग्जीक्यूट करना और दलाली आपको मिलना, इससे बेटर कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का सोल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, ये जो अल्फा इनसाइट जो स्टॉक्स लाता है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। जब 15 दिन के बाद में रीबैलेंसिंग होती है, तो उस समय पे अगर आपका लिया हुआ स्टॉक अभी भी एआई के हिसाब से बेस्ट स्टॉक है तो वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो वो बदल जाएगा। तो इसका फायदा ये होता है कि जो स्टॉक जल्दी चलने वाला होता है वो रीबैलेंसिंग के वक्त में आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है, और जो स्टॉक मार्केट के वजह से लगाड़ रह गया या ना चला, वो आपके पोर्टफोलियो से जल्दी निकल जाता है। इसके अंदर और भी एक चीज है, ये देखने की बात है कि शार्प रेशियो, मतलब आपका पोर्टफोलियो ने कितने रिस्क पे कितना रिवॉर्ड दिया।
जितना शार्प रेशियो बढ़ा हुआ रहता है उतना वो पोर्टफोलियो बेटर माना जाता है, मतलब आपने कम रिस्क पे हायर रिटर्न लिया। अब आप देख सकते हैं नवंबर में जब पोर्टफोलियो ने 76% रिटर्न दिया था, शार्प रेशियो 3.2 एज अगेंस्ट 2 ऑफ द निफ्टी, विच इज अ वेरी वेरी healthy way of making money. Also, something more interesting over here, that whatever stocks come in your portfolio, they will not be below 7,500 crores of market cap. That means 7,500 करोड़ की मार्केट कैप के नीचे की कंपनी लेंगे ही नहीं, और मिनिमम 5 एनालिस्ट का बाय रिकमेंडेशन उस स्टॉक में होना चाहिए। तो लिक्विडिटी, वॉल्यूम एंड लार्ज मिड कैप्स या लार्ज कैप्स या अपकमिंग स्मॉल कैप्स इसमें रहेंगे, बट पेनी स्टॉक्स इसमें नहीं रहेंगे। आप लोगों को इसमें कोई सवाल है तो आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? So there is a person asking that will you send the acha, this question I have already answered. Parag, is there any questions? Okay, आपने पूछा, एक एसपीजी ने पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन विच पीएल विल मैनेज, तो उसका नाम है फैल्कन, जो विक्रम का प्रोडक्ट है, बट आप अल्फा इनसाइट भी कर सकते हैं। Yes, Mr. Jain, when you do the rebalancing, the stocks will be sold and bought. So likewise, short-term gain or loss will be attracted. But basis the historical outperformance of this product by the Nifty benchmark of minimum 2 to 3 times, I think that part will be well covered and it won't be an impact. Since you all are prospect partners, okay. Is 25K one-time charge per year? Sir, it is a per year charge. You have to pay it upfront, and then we claim from the SEBI advisor 50% of the fees. That 50% may say 50% we share with you. So thereby from 25,000 we get 12,500 and we pass back 6,250. Suppose you have subscribed to this product in January, we claim the money in February and we make you payment in March, because we get it by Feb end. So this Alpha Insight, we have also broken up into small products, which is a do-it-yourself product. So the 16 stocks in which three are, one is momentum, one is value, and one is sector. You can also invest 2 lakh rupees in a product called Equity Rocket, which is nothing but your momentum stocks, in which your ledger needs to have 2 lakhs, and instead of 25,000 you can pay 10,000 advisory fees. On your mobile you will get notification and you can do the rebalancing. Every 15 days the stock will get rebalanced, and again in this the returns are quite similar to the Alpha Insight product. Here you will get 2,500 rupees pass back, that is 25% of what we make in the advisory fees. Likewise, for the people who want to go for Sector Navigator, which is one of very unique product and not available in the market with anybody, there also you need to put 2 lakh rupees in your account, pay 10,000, and you will get what do you say, 2,500 rupees as a pass back. And hidden gems, it is nothing but value stocks where the rebalancing is done every 1 month. In Sector Navigator, the rebalancing is done every 2 months. So there are two variants of our product. One is Alpha Insight, which is an offline product, and the other product are all online, which you can do through our mobile app, where the investment amounts are to 2 lakh rupees. So this is what I would like to say. Parag, if any more questions, we can take it up.
क्या संतोष जी पूछ रहे हैं कि रीबैलेंसिंग लॉस में होगा या प्रॉफिट में? सर रीबैलेंसिंग लॉस में होगा या प्रॉफिट, मतलब इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। जब भी रीबैलेंसिंग का डेट आता है, आपके पास में जो स्टॉक होगा, लेट से 4-8 मोमेंटम के स्टॉक्स हैं, अब उस समय पे रीबैलेंसिंग के डेट पे अगर एआई को दूसरे कोई स्टॉक मिले जो जो बेटर मोमेंटम जा सकते हैं, तो वो आपके ये वाले मोमेंटम को बेच देंगे और नए वाले मोमेंटम को खरीद लेंगे। तो उस समय पे जरूर लॉस होगा, बट जो स्टॉक उन्होंने खरीदा वो बहुत ज्यादा उस समय बढ़ के आपका नेट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, बट एंड में जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट होगा, अगर आप इसको 1 से 3 साल तक का समय देते हैं तो। यहाँ पे मैंने जो एक्सेल शीट डाली है, उसके अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट डाले हैं और अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से क्या आपकी कमाई होगी वो डाला है। तो हमारे पास में इंश्योरेंस भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। कई लोग आपके अंदर इंश्योरेंस भी करते होंगे, बट हमारे पास ऐसे कुछ प्लान्स है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्लान है जिसमें हम लोग कैश में प्रीमियम लेते हैं अप टू 2 लाख रुपीज, और वाइट में उसका पेमेंट देते हैं टैक्स फ्री। इस प्लान को श्रीराम फाइनेंस ने करा है और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने, और उनके संग हमारा डायरेक्ट टाई अप है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो हम लोग मनी बैक प्लान और रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन करके बताते हैं, जहाँ पे कस्टमर का 10-20 लाख रुपया हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4 करोड़ रुपया ग्रो कराते हैं। कस्टमर को इंश्योरेंस भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है, और आपको आपका एन्युटी इनकम भी मिलता है। अगर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें जरूर बताइए। इसके अलावा हमारे पास में मार्केट लिंक डिबेंचर करके एक प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम लोग कैपिटल गारंटी देते हैं, और ये डिबेंचर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से चालू होता है, और उसके अंदर आपको 1.8 या 1.9% जितना कमीशन पासबैक मिलता है। इस डिबेंचर का खासियत ये है कि ये कैपिटल गारंटी के साथ में फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम के साथ में भी आता है 10%। और अगर मार्केट 10% से ज्यादा ग्रो करता है तो आपको मार्केट का ग्रोथ कैपिटल के संग देता है। तो ये उन क्लाइंट्स के लिए जरूरी है जिनको मार्केट का ग्रोथ चाहिए बट कैपिटल नहीं रिस्क करना है। अनलिस्टेड शेयर के बारे में विक्रम ने बहुत एक बात बोली। तो अनलिस्टेड शेयर्स एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप लाखों कमा सकते हो पर डे। तो अच्छे अच्छे कंपनियां जो हम रिसर्च करते हैं, उनका हम आपको रिसर्च रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं कि आप अनलिस्टेड मार्केट में अपने क्लाइंट्स को काम करवाइए। Sir, we are not a manufacturer of MLD. We are tied up with Abans Group for marketing their market link debenture. In unlisted share, we are currently focusing on a stock called TRL Refractories. It is a Tata company, and also 80% stake is by Nippon Steel. Refractory business is in high demand, and this stock is trading at a very low valuation compared to its peers. Tata continues to hold some stake. Nippon Steel holds 80% stake, and rest of the stake is with some family offices. Very few quantities available in the market. We are one of the suppliers, and we can get you at a very good rate. The other stock which is in demand is the Oyo Hotel. Tata Capital. Tata Capital, my friends, is one of the largest NBFC. Over 17 lakh accounts are there in Tata Capital using just loan against securities. So when this stock comes into the market, it will easily cross 1,000 digits. It is right now around 850 rupees price. So you can tie up with Prabhu Das and give your customers the benefit of AI and con product, the benefit of wealth management through our insurance, our retirement planning, and the benefit of early wealth creation through unlisted shares. For the people who are risk averse, we can give them structured products like MLD, corporate FD, or fixed incomes. I think I have come to the close of my session. Parag, if you want me to cover anything, please let me know.
अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लेना विकास सर को। तो ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है ना वेबिनार में। तो अगर किसी को कुछ इन डिटेल जानना है तो हम लोग फिजिकली आपके ऑफिस में आएंगे। मैं मेरा नंबर आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको फिजिकल मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैं और मेरा टीम आपके पास आ जाएगा फिर विथ ऑल डिटेल्स। और बाकी सब रजिस्ट्रेशन और जो सब चीज़ें हैं, जैसे ही हम लोग एम्पैनलमेंट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको मेल पे एक बार शेयर कर देंगे। फिर हमारा एक जैन आप पूछ रहे हैं कि डू वी गेट अनलिस्टेड शेयर्स इन डीमैट फॉर्म? यस सर, यू गेट इट इन योर डीमैट फॉर्म. You can you will get it in your demat form after you pay the share amount, and you will get it. Just to show you all the comprehensive product that we do. This is our entire business: broking, distribution, wealth management, asset management, institutional equity, investment banking, and securities financing. And in broking, we are not only doing Indian markets but also international markets. There is one more question. Yes, Mr. Vinod, you want to ask question? Please ask. This is our mobile app, and these are our research. Please ask, sir. Sorry. Parag, Vinod ji had to ask a question. क्या question है विनोद जी का? Please unmute. हेलो। Yeah. नमस्ते सर जी। Sorry. नमस्ते. सर जी, एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई मान लो जैसे अपन क्लाइंट के पास जा रहे हैं और एक क्लाइंट का अगर समझो सवाल रहा कि जैसे रीबैलेंसिंग का समय आया और उस समय अपने जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आए हुए हैं और हम लोगों को रीबैलेंसिंग के समय कुछ चीजें अच्छी दिख रही है तो हम उसको निकाल के वापस उसको एंट्री करने वाले हैं नए स्टॉक्स में। ये एक एंट्री हो गई। सेकंड, जब रीबैलेंसिंग का समय आया तो उस समय भी वापस से यही पोजीशन आ गई कि जो अपन ने रिसेंट लिए थे, फिर से बाय किए थे और उनकी भी पोजीशन नीचे आ गई और फिर से अपने को एक अच्छी नई चीज दिख रही है। तो ऐसा यदि हम लोगों के साथ 2-3 बार या कस्टमर के अकाउंट के साथ 2-3 बार कंटिन्यूअस हो जाता है तो उनके पोर्टफोलियो तो सर माइनस होते जाएंगे। सही बात है। तो दो चीज है। एक, हम कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेंगे। जो पैसा इन्वेस्टेड किया है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग, वही पैसा में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जब पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा तो वो लॉस उसका उतना बुक हो गया, और वो फिर जो स्टॉक्स हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो दे आर सपोज टू राइज इन वैल्यू एंड मेकअप फॉर द लॉसेस। तो आपकी बात सही है कि जब रीबैलेंसिंग आएगी और अगर मार्केट नीचे है तो नीचे के भाव में स्टॉक बिक जाएगा और नीचे के भाव में नया स्टॉक लिया जाएगा। हमने देखा है कि ये पोर्टफोलियो में 5 से 15% का ड्रॉडाउन आ सकता है, बट रिकवरी भी उतनी तेजी से होती है, ये भी हमने देखा है। आई होप जी विनोद जी सर, मैंने रिकवरी आपका तो आंसर यदि किया कस्टमर के सवाल। अकाउंट में हाँ, जी जी जी, रिकवरी तो यदि कस्टमर के अकाउंट में यदि हुई तो वही पर्पज है और वही उसके लिए अच्छा है और हम लोगों की क्लाइंट बेस भी तभी बढ़ेगा। और विनोद ऐसा जी हुआ देखिए है क्या, बात, मतलब विनोद जी बात जिसके ये लिए है, कि भाई बात, कंटिन्यूअस जो या पोजीशन विनोद रहती जी, है वो कंटिन्यू नीचे जा रही है, ताकि हम लोगों की जो जवाबदेही है, नहीं जो आंसर विनोद जी करने जब की आप हम लोगों की कस्टमर को, जिम्मेदारी है, वो क्लाइंट के जब पास आप, यदि सर वो बेस के साथ जाएंगे ना तो हमारा क्लाइंट बेस और बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसी विनोद जी जब आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट देते हैं, विनोद जी हैं कि गए? हाँ, विनोद जी जब आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट देते हैं
तब आपको उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि पोर्टफोलियो जब एआई देगा तो उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, और 15-15 दिन में इसीलिए रीबैलेंस होता है क्योंकि उसको बेस्ट पॉसिबल स्टॉक में रहना रहता है। अगर क्लाइंट 10% या 15% के ड्रॉडाउन से विचलित होने वाला है या डरने वाला है, तो आपको उसको पहले मेंटली ये प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना ये प्रोडक्ट उसके लिए नहीं है। और हमने ये देखा हुआ है कि 10-15% की वॉलेटिलिटी के बाद में प्रोडक्ट फिर से ऊपर आ जाता है। ये हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक जेंट्स आपका सवाल मैं पूछ चुका हूँ और जवाब दे चुका हूँ। यस सरफराज भाई, हम लोग एपीआई का एक्सेस देते हैं। हमारे पास एक टाई अप है, अगर आप हमारी साइट पे जाएंगे तो रोबोटेक करके हमने टाई अप कर रखा है, और उसके थ्रू हम एपीआई का आपको ब्रिज बना के देते हैं, जहाँ पे आप चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू, पाइथन, एमी ब्रोकर, या कोई भी आपका एक्सेल शीट भी अगर हो तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। So thank you very much for joining us on this Saturday. I will request the team to follow up with each one of you all and try to get maximum empanelments. Thank you, Parag. Thank you, Rohit, and thank you, the team. थैंक यू विकास भाई, थैंक यू।